اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے میں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل آن لائن قرآن کلاسز میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آن لائن قرآن کلاسز شروع کیے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی رحمان پورا قرآن مجید تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے، جو کوئی بھی قرآن مجید تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے وہ یہ کلاسز جوائن کر سکتا ہے، اور جس کے ہم نے پارٹ 4 کمپلیٹ بھی کیے۔ آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے، کلاس ہے، وہ ہے پارٹ 5، جس میں ہمیں لام سے لے کر یا تک ان کا مخارج جاننا ہے۔ بیسیکلی یہ ورڈز کہاں سے ادا ہو جاتے ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم الف سے لے کر یا تک ان کو ایک تعلیم دیں گے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ورڈز کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ پریویس کلاس میں ہم نے ضاد سے لے کر قاف تک ان کا مخارج جانا، بیسیکلی یہ ورڈز کہاں سے ادا ہو جاتے ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے اس کلاس کی اچھے سے پریکٹس کی ہوگی۔ آج ہمیں لام سے لے کر یا تک ان کا مخارج جاننا ہے، یہ ورڈز کہاں سے ادا ہو جاتے ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو چلو آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام، 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 لام کا مخارج ہے، زبان کا طرف لسان جب اوپری دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے۔ زبان کا طرف لسان جب اوپری دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے۔ زبان کا طرف لسان کسے کہتے ہیں؟ اگزامپل کے لیے یہ ہماری زبان ہے۔ زبان کا جو یہ آگے والا پارٹ ہوتا ہے اسے زبان کی نوک کہتے ہیں۔ زبان کا جو یہ سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے اسے زبان کا درمیانی والا حصہ کہتے ہیں، اور زبان کا جو یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ ہوتا ہے اسے زبان کا بغلی حصہ کہتے ہیں، اور جو زبان کا یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ جو رائٹ سائڈ میں بھی ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ میں بھی ہوتا ہے اسی کو طرف لسان کہتے ہیں۔ زبان کا طرف لسان جب اوپری دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے۔ اوپری دانت آپ کو پتہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی یہ دانت ہیں ان کے ہی جڑوں کے ساتھ زبان کا طرف لسان لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے۔ زبان کا طرف لسان اوپر کے دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی یہ دانت ہیں ان کے ہی جڑوں کے ساتھ زبان کا طرف لسان لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے۔ تو لام کا مخارج سمپل ہے، زبان کا طرف لسان جب اوپری دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہاں پر لوکل لینگویج یوز کرتا ہوں، میں یہاں پر ٹف لینگویج یوز نہیں کرتا ہوں، میں وہ لینگویج یوز کرتا ہوں جو سب کو سمجھ میں آئے، اسی لیے میں آپ کو ان کے مخارج سمپل لینگویج میں سمجھاتا ہوں۔ زبان کا طرف لسان جب اوپری دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے لام ادا ہو جاتا ہے۔ میم، 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 میم کا مخارج ہے دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ، دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ۔ دونوں ہونٹ آپ کو پتہ ہوں گے، خشک بولتے ہیں جو ڈرائی ہوتا ہے، جو سوکھا والا پارٹ ہوتا ہے اسی کو خشک کہتے ہیں۔ تو دونوں ہونٹوں کا
खुश्क वाला हिस्सा। तो जब हमारे दोनों होंठ खुश्क वाले साइड से मिलते हैं मीम अदा हो जाता है। खुश्क वाला हिस्सा हमारे होंठों में बाहर की तरफ होता है, तरी वाला हिस्सा हमारे होंठों में अंदर की तरफ होता है। तो मीम को अदा करने के लिए हमें दोनों होंठ खुश्क वाले साइड से मिलाने पड़ते हैं, मीम अदा हो जाता है। दोनों होंठों का खुश्क वाला हिस्सा। मीम का भी मखारिज सिंपल है, दोनों होंठों का खुश्क वाला हिस्सा। नून, 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 नून का भी मखारिज सेम है जो लाम का है। जहां से लाम अदा हो जाता है वहीं से नून भी अदा हो जाता है। इन दोनों का मखारिज सेम है। जुबान का तौरफ लिसान जब ऊपरी दांतों के जड़ों के साथ लग जाता है, लाम और नून अदा हो जाता है। जुबान आपको पता है, जुबान का जो ये आगे वाला पार्ट होता है इसे जुबान की नोक कहते हैं। जुबान का जो ये बीच वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट, इसे जुबान का दरमियानी हिस्सा कहते हैं। जो जुबान का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होता है इसे जुबान का बगली हिस्सा कहते हैं। और जो जुबान का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होता है, जो राइट साइड से भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, इसी को तौरफ़े लिसान कहते हैं। तो जब जुबान का तौरफ़े लिसान ऊपरी दांतों के जड़ों के साथ लग जाता है, लाम और नून अदा हो जाता है। ऊपरी दांत आपको पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जितने भी ये दांत हैं, इनकी जो जड़ हैं, इन्हीं के साथ जुबान का तरफ लिसान लग जाता है, लाम और नून अदा हो जाता है। जुबान का तरफ लिसान जब ऊपरी दांतों के जड़ों के साथ लग जाता है, लाम और नून अदा हो जाता है। वाव, 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 वाव का मखारिज सिंपल है, दोनों होंठों का गोल होना या दोनों होंठों को गोल करना। वाव को अदा करने के लिए हमें बस अपने होंठ गोल करने हैं, वाव अदा हो जाएगा। दोनों होंठों का गोल होना, वाव का मखारिज सिंपल है। हा, 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 दो हा है कुरान मजीद में, एक है हा हलक का दरमियानी हिस्सा, हा हलक का इब्तिदाई हिस्सा। इस हा का मखारिज है हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हलक आपको पता है, हलक गले को कहते हैं। गले का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से गला ऊपर की तरफ शुरू होता है, उसी को इब्तिदा कहते हैं। हलक का इब्तिदाई हिस्सा, जहां से गला स्टार्ट होता है, उसी को हलक का इब्तिदाई वाला हिस्सा कहते हैं। तो हा को हमें यहीं से ऊपर की तरफ खींचना है। हा, 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 हलक का इब्तिदाई हिस्सा, हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हलक गले को कहते हैं, इब्तिदा बोलते हैं जहां से गला स्टार्ट होता है। हमजा, 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 हमजा का भी मखारिज सेम है जो हा का है। जहां से हा अदा हो जाता है वहीं से हमजा भी अदा हो जाता है। इन दोनों का मखारिज सेम है। हलक का इब्तिदाई हिस्सा, हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हलक आपको पता है, हलक गले को कहते हैं, इब्तिदा बोलते हैं जहां से गला स्टार्ट होता है। तो हमजा को हमें यहीं से ऊपर की तरफ खींचना है, हमजा अदा हो जाएगा। हमजा, 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 हा, हमजा, हा, हमजा। तो इन दोनों का मखारिज यही है, हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हलक गले को कहते हैं, इब्तिदा बोलते हैं जहां से गला स्टार्ट होता है। तो हा और हमजा को हमें यही से ऊपर की तरफ खींचना है, हलक का इब्तिदाई हिस्सा। या, 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 या का मखारिज है जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा। जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा। सेम जैसे जीम का है, शीन का है, वैसे ही या का भी है। जहां से जीम और शीन अदा हो जाता है वहीं से या भी अदा हो जाता है। जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा। जुबान आपको पता है, जुबान का जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है इसी को जुबान का दरमियानी हिस्सा कहते हैं। और तालों भी आपको पता है, तालों का जो सेंटर पार्ट होता है इसे तालों का दरमियानी हिस्सा कहते हैं। तो जब जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा, जुबान का सेंटर पार्ट और तालों का सेंटर पार्ट आपस में मिल जाता है, जीम, शीन और या अदा हो जाता है। इन तीनों का मखारिज सेम है, जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा। तो बस आज हम यही तक पढ़ेंगे।
फाइनली हमारे मखारिज के क्लास कंप्लीट हो गए। फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी इनका मखारिज रिपीट करता हूँ। हमज़ा हलक का इब्तिदाई हिस्सा, हलक गले को कहते हैं, इब्तिदा बोलते हैं जहाँ से गला स्टार्ट होता है, तो हमज़ा हलक के इब्तिदा वाले हिस्से से अदा हो जाता है। बा दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा, दोनों होठ आपको पता है तरी बोलते हैं जो गीला होता है। हमारे होठों में गीला वाला पार्ट थोड़ा अंदर की तरफ होता है, तो जब दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं तरी वाले साइड से बा अदा हो जाता है, दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा। ता जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ या जुबान की नोक ऊपरी दांतों की जड़। अगर आपको सनाया उलिया याद ना रहे, जुबान की नोक आपको पता है जुबान का जो आगे वाला पार्ट होता है इसे जुबान की नोक कहते हैं। सनाया उलिया जो हमारे ऊपर के बड़े दो दांत होते हैं इन्हें सनाया उलिया कहते हैं। इनकी जो जड़ है इसी के साथ जुबान की नोक लग जाती है, ता अदा हो जाता है। जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। सा जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा या जुबान की नोक ऊपरी दांतों का किनारा, अगर आपको सनाया उलिया याद न रहे। जुबान की नोक आपको पता है जुबान का जो आगे वाला पार्ट होता है इसे जुबान की नोक कहते हैं। सनाया उलिया ऊपर के जो दो बड़े दांत होते हैं इन्हें सनाया उलिया कहते हैं। इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसी को किनारा कहते हैं, जिन्हें हम शार्प एजेस भी कहते हैं। इन्हीं किनारों के साथ जुबान की नोक को लगाना है, सा अदा हो जाएगा। जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। यहाँ पर हमें जुबान को थोड़ा सा बाहर लाना पड़ता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। फिर इन्हीं किनारों के साथ जो ये शार्प एजेस हैं इन्हीं के साथ जुबान की नोक को टच करना है, सा अदा हो जाएगा। जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। जीम जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा। जुबान का जो सेंटर पार्ट होता है इसे जुबान का दरमियानी हिस्सा कहते हैं। तालों का जो सेंटर पार्ट होता है इसे तालों का दरमियानी हिस्सा कहते हैं। तो जब जुबान का दरमियानी हिस्सा तालों का दरमियानी हिस्सा आपस में मिल जाता है, जीम अदा हो जाता है। हलक का दरमियानी हिस्सा। हलक आपको पता है हलक गले को कहते हैं, गले का जो सेंटर पार्ट होता है उसी को दरमियानी कहते हैं। तो ह को हमें हलक के दरमियानी वाले हिस्से से अदा करना होता है। हलक का दरमियानी हिस्सा। ख्वा हलक का ऊपरी हिस्सा। हलक आपको पता है गले को कहते हैं, गले का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसी को हलक का ऊपरी हिस्सा कहते हैं। तो ख्वा को हमें हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करना होता है। ख्वा हलक का ऊपरी हिस्सा। दाल जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़, सेम जैसे ता का है वही दाल का भी है। जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। वाल जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, सेम जैसे सा का है वही वाल का भी है। जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। जुबान की नोक को थोड़ा सा बाहर लाना है, फिर सनाया उलिया के किनारों के साथ उसे टच करना है। किनारा बोलते हैं जो दांतों का नीचे वाला पार्ट होता है इसी को किनारा कहते हैं। इसी के साथ जुबान की नोक को लगाना है, सा और वाल अदा हो जाएगा। रॉ का मखारिज है जुबान की करवट और दाढ़। जुबान की करवट और दाढ़। रॉ को अदा करने के लिए हमें अपनी जुबान की नोक को थोड़ा सा बेंड करना होता है ऊपर की तरफ, उसी को करवट कहते हैं। फिर दाढ़ के साथ लगाना पड़ता है। जो हमारे ऊपर के दांत हैं सनाया उलिया, इनकी जो जड़ है, जड़ों से आगे एक लकीर जैसी होती है, मोटी वाली लकीर। जब आप अपनी जुबान जड़ों से थोड़ा आगे लोगे आपको खुद फील होगा वहां पर एक लकीर जैसी होती है मोटी वाली, उसी को दाढ़ कहते हैं। तो जब जुबान की नोक करवट लेती है ऊपर की तरफ, फिर उसी दाढ़ के साथ उसे लगाना है और रॉ अदा हो जाएगा। जुबान की करवट और दाढ़। जा जुबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला के बीच में। जुबान की नोक आपको पता है सनाया उलिया जो हमारे ऊपर के बड़े दो दांत होते हैं, सनाया सुफला कहते हैं जो हमारे नीचे के दो बड़े दांत होते हैं, जो बिल्कुल सनाया उलिया के अपोजिट होते हैं, इन्हीं को सनाया सुफला कहते हैं। तो जा को अदा करने के लिए हमें पहले सनाया उलिया और सनाया सुफला को करीब लाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करीब। फिर जब हम जा को पढ़ेंगे तो जो हमारी जुबान की नोक है वो सनाया सुफला के साथ टच होनी चाहिए। जो सनाया सुफला का अंदरूनी वाला पार्ट है उसी के साथ जुबान की नोक टच होनी चाहिए, जा अदा हो जाएगा। सीन का भी मखारिज सेम है जो जा का है। जुबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला के बीच में। तो सीन को भी अदा करने के लिए हमें पहले सनाया उलिया और सनाया सुफला को करीब लाना पड़ता है। फिर जब हम सीन को पढ़ेंगे तो जुबान की नोक सनाया सुफला के साथ टच होनी चाहिए, सीन अदा हो जाएगा। शीन जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा, सेम जैसे जीम का है।
सौद, सौद का भी मखारिज सेम है जो जा और सीन का है। जहां से जा और सीन अदा हो जाता है वहीं से सौद भी अदा हो जाता है। जुबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला के बीच में, और इन तीनों की एक यूनिक सिंबल है कि इन तीनों को पहले सीटी जैसी निकलती हैं, जैसे जा, सीन, सौद। अब सौद हमें पढ़ने में डिफरेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि सौद पुर है। सौद को हमें मुंह में मोटा करके पढ़ना होता है और मुंह को थोड़ा सा गोल करना है और इसे ऊपर की तरफ खींचना है। जा और सीन को हमें ऊपर की तरफ नहीं खींचना है क्योंकि जा और सीन बारीक वर्ड्स हैं। दौद, दौद, दौद का मखारिज है जुबान का बगली हिस्सा जब ऊपर के दड़ों के जड़ों के साथ लग जाता है दौद अदा हो जाता है। जुबान का बगली हिस्सा जब ऊपरी दड़ों के जड़ों के साथ लग जाता है दौद अदा हो जाता है। त्वा, त्वा, त्वा का मखारिज है जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। सेम जैसे ता, दाल, वैसे ही त्वा भी, जहां से ता और दाल अदा हो जाता है वहीं से त्वा भी अदा हो जाता है। अब त्वा पढ़ने में डिफरेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि त्वा पुर है। त्वा को पढ़ने के लिए हमें अपना मुंह गोल जैसा करना होता है और इस बोर्ड को हमें मोटा करके पढ़ना है। वा, वा, वा का मखारिज है जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। सेम जैसे सा का है, जाल का है, वही वा का भी है। जहां से सा और जाल अदा हो जाता है वहीं से वा भी अदा हो जाता है। जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। अब ज़ा पढ़ने में डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि ज़ा पुर है, इसे मुंह में मोटा करके पढ़ना है और मुंह को थोड़ा सा गोल करना है। आइन, आइन, हलक का दरमियानी हिस्सा। सेम जैसे हा का है वही आइन का भी है। जहां से हा अदा हो जाता है वहीं से आइन भी अदा हो जाता है। हलक का दरमियानी हिस्सा। हलक आपको पता है गले को कहते हैं। गले का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसी को हलक का दरमियानी वाला हिस्सा कहते हैं। तो हा और आइन को हमें उसी दरमियानी वाले हिस्से से अदा करना है। गैन, गैन का मखारिज है हलक का ऊपरी हिस्सा। सेम जैसे ख्वा का है। जहां से ख्वा अदा हो जाता है वहीं से गैन भी अदा हो जाता है। हलक का ऊपरी हिस्सा। हलक आपको पता है गले को कहते हैं। गले का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसी को हलक का ऊपरी हिस्सा कहते हैं। तो ख्वा और गैन को हमें हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करना है। फा, फा, फा का मखारिज है सनाया उलिया के किनारे निचले वाले होठ पर। सनाया उलिया के किनारे निचले वाले होठ पर। सनाया उलिया आपको पता है ऊपर के जो ये बड़े दांत होते हैं इन्हें सनाया उलिया कहते हैं। इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे किनारा कहते हैं। जो शार्प एजेस होते हैं यही किनारे निचले वाले होठ पर पड़ते हैं, लेकिन अंदरूनी साइड से जो तर होते हैं, गीला वाला पार्ट होता है, उसी पार्ट पर ये सनाया उलिया के किनारे पड़ते हैं। फा अदा हो जाता है सनाया उलिया के किनारे निचले वाले होठ पर। औफ, औफ, औफ का मखारिज है जुबान की जड़ तालों का नरम वाला हिस्सा। जुबान की जड़ आपको पता है जुबान का जो निचले वाला पार्ट होता है इसे जुबान की जड़ कहते हैं। तो जब हम औफ पढ़ते हैं जुबान की जड़ उठकर तालों के नरम वाले पार्ट से लग जाती है, औफ अदा हो जाता है पुर वाला कौफ। औफ, काफ, काफ, बारीक वाले काफ का मखारिज है जुबान की जड़ तालों का नरम वाला हिस्सा। जुबान की जड़ और तालों के नरम वाले हिस्से से बारीक वाला काफ अदा हो जाता है। लाम, लाम, लाम का मखारिज है जुबान का तरफ लिसान जब ऊपरी दांतों के जड़ों के साथ लग जाता है लाम अदा हो जाता है। जुबान का जो ये वाला पार्ट होता है इसे तरफ लिसान कहते हैं। ऊपरी दांतों की जड़ जो यहाँ से यहाँ तक जितने भी ये दांत हैं इनकी जो जड़ है इन्हीं के साथ जुबान का तरफ लिसान लग जाता है, लाम अदा हो जाता है। मीम, मीम, मीम का मखारिज है दोनों होठों का खुश्क वाला हिस्सा। दोनों होठ आपको पता होंगे खुश्क वाला हिस्सा होठों में बाहर की तरफ होता है। तो जब हमारे दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं खुश्क वाले साइड से मीम अदा हो जाता है, दोनों होठों का खुश्क वाला हिस्सा। नून, नून, नून का भी मखारिज सेम है जो लाम का है। जहां से लाम अदा हो जाता है वहीं से नून भी अदा हो जाता है। जुबान का तरफ लिसान जब ऊपरी दांतों के जड़ों के साथ लग जाता है लाम और नून अदा हो जाता है। वाव, वाव, वाव का मखारिज सिंपल है दोनों होठों का गोल होना। यहाँ पर हमें दोनों होठ गोल करने पड़ते हैं, वाव अदा हो जाता है।
ہا کا مخارج ہے حلق کا ابتدائی حصہ. حلق آپ کو پتا ہے گلے کو کہتے ہیں، گلے کا جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے اسی کو ابتدا کہتے ہیں، جہاں سے گلا سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہا حلق کے ابتدا والے حصے سے ادا ہو جاتا ہے. حمزہ کا بھی مخارج سیم ہے جو ہا کا ہے، جہاں سے ہا ادا ہو جاتا ہے وہی سے حمزہ بھی ادا ہو جاتا ہے، حلق کا ابتدائی حصہ. یا کا بھی مخارج سیم ہے، جو جیم اور شین کا ہے وہی یا کا بھی ہے، جہاں سے جیم اور شین ادا ہو جاتا ہے وہی سے یا بھی ادا ہو جاتا ہے. زبان کا درمیانی حصہ، تالوں کا درمیانی حصہ. تو ہمارے مخارج کے کلاسز کمپلیٹ ہو گئے. آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے یہاں پر لوکل لینگویج یوز کی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تو اب آپ سے میری ریکویسٹ ہے، یہ جتنے بھی یہ کلاسز ہیں مخارج کے، ان کی آپ بہت زیادہ پریکٹس کرنا. تب تک ان ورڈز کی پریکٹس کر لینا جب تک آپ کے ورڈز ٹھیک نہیں ہو جاتے، جب تک آپ کے مخارج ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک آپ ان ورڈز کی پریکٹس کر لینا. انشاءاللہ تعالی رحمان نیکسٹ کلاس میں ہم سیکھیں گے ورڈز کی ڈفرینس کرنا. جو یہ مشق ہیں اس میں ہم ورڈز کی ڈفرینس کرنا سیکھیں گے. تب تک آپ ان کلاسز کی اچھے سے پریکٹس کر لینا اور اس قاعدے کو ضرور لانا، نورانی قاعدہ. اب اگر کوئی نہیں بھی لا سکتا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں پر میں نے اس قاعدے کا PDF بنایا ہوا ہے، اس پر کلک کرنا، ڈاؤن لوڈ کر لینا، پھر اسی سے اپنی پریکٹس کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.